Hello everyone, welcome to EduTap. So I was going through the comment box of last few videos regarding IFSCA grade A, and a lot of students were commenting that how to prepare these unique subjects that are there as a part of this IFSCA grade A syllabus. When I say unique subjects, basically those subjects that are highly non-overlapping with respect to the preparation for other regulatory bodies examinations, right? So we'll talk about them, we will see the approach. We are also going to see what could be the sources that you can refer in order to prepare these components one by one, right? And this is going to be very helpful for those aspirants who are still at the awareness stage regarding this examination. But before we discuss all these things, just a small announcement. We know that previous year papers play a very important role no matter what examination you are preparing for, including IFSCA grade A. So what you can do in order to download these previous year questions, you can go to the description box and you can click over the link. It will help you to understand the trend, pattern and difficulty level with respect to this examination. Now coming back to the video, let us decode the syllabus with respect to these unique subjects that are there. When I say unique subjects, basically we are going to talk about firstly this IFSCA Act, right? We will also talk about the bullion market. Not about why not about Union Budget and Economic Survey, because of course you cover it as a part of your other regulatory bodies examinations also. This is highly overlapping, I would say. We will also not see the banking chapter, because banking again it is a component that you are ultimately you are going to cover in other examinations also. So this is, I would say, highly overlapping, right? And same case is with capital market also. But bullion is something that we are going to see. Then we will see the insurance also. Although I would say IRDI grade A students, they would be knowing about this component insurance, but I would say those who are not preparing for IRDI, they would not be aware about this insurance. And the same case is with pension also. PFRDA students, they know about pension, they have just appeared for the examination on 6th of September. But other students who have not prepared for these examinations, for them I would say pension is an important component, so we will talk about that too. Then we will talk about this component regarding Gift City and global financial centers, right? So this is going to be, I would say, the main agenda regarding this video. So first of all, if we talk about IFSCA Act, let me tell you that this act is very important as far as this phase 2 examination is concerned, right? And you cannot ignore this act. And the best way to cover this act is basically you have to go to this website, which is ifsca.gov.in, and under this about us section you can go to regulations and you can download this act. अगर यहाँ से भी नहीं मिल रहा तो सिंपल गूगल कर लेना, ठीक है? वहाँ भी मिल जाएगा पीडीएफ लिखकर, एंड पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो. एंड माय सजेशन इज दैट व्हाइल कवरिंग दिस एक्ट डू नॉट फॉलो एनी थर्ड पार्टी सोर्स. आप सीधा एक्ट ही पढ़ो, ठीक है? क्योंकि but the point is that basically if you read this act is of only around 16 to 17 पेजेस, ठीक है? 16 से 17 पेजेस का एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है. और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? नाउ माय सजेशन इज दैट दिस इज जस्ट माय सजेशन टू यू. If it works for you, you can go for it. Otherwise, whatever is your approach, you can follow that too. My suggestion is that please prepare notes for this act. And usually when I say notes, I suggest students to follow this 1/10 rule. What is 1/10 rule? For example, if the act is of 16 to 17 pages, so divided by 10, it is 1.7. So the notes that you are preparing should not cross 2 pages, right? Minimum 2, I would say minimum 2, maximum 3. 3 से ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए. 2-3 पेजेस के नोट्स बना लो इसके. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करनी है इस एक्ट में से, उन नोट्स पे लिख लो, ठीक है? 2-3 पेजेस पे. अब उन 2-3 पेजेस को मैं कहता हूँ 20 से 30 बार रिवाइज कर लेना. जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करते जाओ, ताकि आपकी पूरी कमांड आ जाए इस एक्ट पर. और जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं, द क्वेश्चंस दैट आर दे आर फैक्चुअल इन नेचर, सो यू विल बी एबल टू हैंडल देम, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई show you some sample questions as a part of PYQs, so you can see what is the maximum नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन IFSCA. तो ये अगर आप यहाँ पे कंपोजिशन पढ़ोगे अथॉरिटी का, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. देन इट इज आस्किंग अबाउट सेक्शन 13 ऑल्सो, again as a part of this act. Then it is also asking about the enactment year of the IFSCA Act, right? Very easy question. So you can see that अगर आप ये एक्ट अच्छे से कर लेते हो तो मतलब आप इससे बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो. और इसका जो बेस्ट वे इसको कवर करने का वो यही है कि एक्ट आप बार बार नहीं पढ़ पाओगे. ऑफ कोर्स आप हाईलाइट भी कर सकते हो. इफ यू आर रीडिंग द पीडीएफ, आप हाईलाइट कर लो, सबका अपने पढ़ने का तरीका होता है. बट व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि 2-3 पेज के नोट्स बना लो, ठीक है? और नोट्स में सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाते जाओ. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जो भी आपकी रेलेवेंट चैप्टर्स में से जितनी भी ये सेक्शंस है, इसमें से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करनी है based on the PYQs, right? So you can do that and easily you can cover this act. I would say not a big task at all, right? So that is about this IFSCA Act, and this is the source, which is the original act that you have to refer, right? Which is IFSCA Act 2019.
आफ्टर दैट वी हैव कैपिटल मार्केट, बैंकिंग एंड बुलियन. अब मैं अगर आपको सिलेबस दिखाऊं, राइट, इफ यू सी द सिलेबस, you can see capital market and banking is the same syllabus that you cover in other regulatory bodies examination also, like RBI, SEBI, etc., right? So if you see banking syllabus, वही syllabus है, no difference is there, right? So we are not going to discuss it because this is highly overlapping. If you talk about capital market also, this is also overlapping. You can see role and function of regulatory bodies in financial sector. Then we have forex, money, bond and equity market. Then we have basics of derivatives. अब यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट है तो थोड़ा सा आई वुड से जहां पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया है, विच इज स्पॉट एंड डेरिवेटिव मार्केट ऑफ प्रीशियस मेटल्स. ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको कवर करनी होगी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, बेसिकली this represents, I would say, the bullion market, right? So in order to cover this one, what I would like to suggest you is that you have to use Google, right? तो आप Google कीजिए and Google में आपको कुछ वेबसाइट्स रेफर करनी है. फॉर एग्जांपल यू कैन गो थ्रू दिस वेबसाइट विच इज IIBX, राइट? तो इस वेबसाइट्स में आप जा सकते हो और यहाँ पर जो FAQs दिए हुए हैं सबसे पहले तो आप उन्हें पढ़ सकते हो, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है डायरेक्टली वहां से. आप इफ आई टॉक अबाउट 2024 पेपर, इन 2024 दे आर जस्ट आस्क्ड यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस IIBX. ठीक है, डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए थे. तो ये IIBX, MCX, NCDEX, ये सब चीजों के जो FAQs है इन वेबसाइट पे, वो FAQs देख लेना. Apart from that, what you have to do, if a major scheme has been launched by the government related to bullion market, right? So you have to read those major schemes also. For example, if you see PYQs, they have asked the question regarding gold monetization scheme, right? तो जो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है बुलियन मार्केट से रिलेटेड, चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होगी या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम होगी, अगर कोई भी गवर्नमेंट ने अपडेट लाई है रिसेंट इन स्कीम से रिलेटेड, आपको वो देखनी है. और या फिर कोई गवर्नमेंट इस मार्केट से रिलेटेड, इफ द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट एनी मेजर इनिशिएटिव or has set any kind of milestone or has launched any kind of scheme or policy with respect to this domain, you have to cover that, right? I don't think it is a big task, right? It is manageable. बस आपको कुछ वेबसाइट स्कैन करनी है, थोड़ा अपडेट्स लेनी है. जैसे आप RBI की वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर गूगल का यूज कर सकते हो कि क्या मेजर स्कीम्स आई है, PIB का यूज कर सकते हो, राइट? एंड थ्रू दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक, आई वुड से 3 to 4 पेजेस नोट्स. कुछ नोट्स बना लो इंपॉर्टेंट और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो. ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट? दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. Apart from that, now let us move on to the next component, which is, I would say, the insurance sector. तो I hope ये क्लियर हो गया होगा. बुलियन मार्केट आप क्वेश्चन में देखोगे स्कीम से पूछे हुए हैं. यहाँ पर भी आई वुड से बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ है रिगार्डिंग द गोल्ड, राइट? तो प्रीशियस मेटल से रिलेटेड आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिकॉज आई वुड से क्वेश्चन आ सकते हैं. बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते यहाँ से, ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पता पैटर्न चेंज हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन पूछ लें वो. तो टू बी ऑन द सेफर साइड, यू मस्ट कवर इट, राइट? सो दीज आर द एफर्ट्स दैट यू मस्ट पुट एज अ पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट. Now, if you talk about insurance topic, now insurance is something that IRDA students, the IRDA aspirants that are there, they have already covered insurance, right? So they are not going to face any problem. But other category of students who are not preparing for IRDA, they will have to put some effort regarding insurance sector also. Now, if you want to know any kind of book or one source or one platform that can deal with this issue, I cannot name it. Why? Because there is no such single book or single source that covers these insurance topics in a detailed manner as far as the demand of this एग्जामिनेशन इज कंसर्न, राइट? तो ऐसा कोई आपको एक सोर्स नहीं मिलेगा. कुछ बुक्स आपको मार्केट में जरूर मिल जाएंगी, बट ऑफ कोर्स वो बुक सफिशिएंट नहीं होगी. ऑफ कोर्स उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, सम टॉपिक्स यू विल बी एबल टू कवर, बट बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे. तो उसके रिगार्डिंग अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको गूगल बहुत अच्छा करना पड़ेगा. ठीक है, आपको गूगल करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस देखनी होंगी IRDA की वेबसाइट पे, राइट? दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. एंड इफ यू वांट टू सी, आई वुड से, the distribution of weightage with respect to different topics as a part of insurance, you can see कि इस टॉपिक में से जो I would say ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं. if you see 2024, you can see 6 to 8 6 to 8 and 9, 10 and 11 क्वेश्चन आए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में से 2024 में. 11 क्वेश्चन आप देख लो सीधा यहाँ से आ रहे हैं. तो ये एक ऐसा एरिया जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. यू डोंट हैव टू टेक इट लाइटली. 2023 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, बट 2024 में 11 क्वेश्चन आए एज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. यू मस्ट पुट सम एफर्ट्स, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू, I would say, if you are doing self-study, you'll have to prepare each and every component in a good manner, right? क्योंकि I would say
थोड़े जो IRDAI में आप एफर्ट डालते थे वहां से एफर्ट थोड़े यहाँ अलग होंगे, बिकॉज IRDAI जो एग्जाम है वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो आई वुड से थोड़ा सा एफर्ट आपका कम भी हो जाएगा, बिकॉज जो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करना होगा, राइट? सो यू कैन मेक आई वुड से नोट्स विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, तो जो भी प्रिंसिपल्स आते हैं मेजर मेजर, आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि अगर वो आपको कोई स्टेटमेंट दे दे और आपसे ये पूछ ले कि यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन दैट this particular statement belongs to what type of principle of insurance, so you have to know that. If you talk about for example, if you talk about intermediaries, so you should know about the intermediaries, that who are the different type of intermediaries that are there as a part of the insurance, so that if a specific type of function is asked from those intermediaries, you are able to answer that. You should have good clarity regarding, I would say, what is health insurance, what is the difference between health insurance and life insurance, right? You should know about banca insurance, that how banks are involved with the insurance companies, right, in order to provide different type of insurance products to the subscribers, right? This is something that you need to know. You need to know about these specialist insurance lines in India, for example, agriculture and import credit guarantee, right? You need to know about this insurance, who are these reinsurance companies, how do they work. तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, एंड आप कुछ बुक्स है मार्केट में, जैसे एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, बट मैं फिर से यही कहूंगा कि बुक सफिशिएंट नहीं होगी, आपको थोड़ा एक्सटर्नल गूगल करना ही पड़ेगा, थोड़े से एडिशनल एफर्ट डालने होंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट डूएबल है. It is not something that is not doable, right? Doable hai if you are able to put some good efforts in right direction, you will be able to manage insurance, right? But non-negotiable, you have to prepare it, you have to prepare this component, because a good number of questions are being asked as a part of this component, right? So I hope it is clear to you. अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चन भी देखें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, कभी कभी तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस इन इंडिया, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, according to IRDAI, which of the following within how many days must an insurance resolve grievance and issue a final letter of resolution, right? तो ये सब चीजें देखो, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, that what is the term used for basis of settlement of loss when the insurance cover is for an amount below the actual level of actual value of item. So this is the nature of question asked, as far as I would say this what do we say, these PYQs are concerned. And as I've already told you कि अगर आपको PYQs देखने हैं, that what are the different PYQs, document already description box में दे दिया है, so you can follow it and you can read it from there, right? You can analyze by yourself that what is the nature of question, and based on the demand of the examination, you can direct your preparation regarding this component, right? So I hope it is clear to you that what you can follow. तो now let us move on to the next part, which is basically the pension funds. Now regarding pension fund, मैं बोलूँगा ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है अगर आपकी स्कीम्स पे कमांड बहुत अच्छी है, राइट? सो एज अ पार्ट ऑफ दिस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द स्कीम्स मेंशन एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, which is NPS, which is Atal Pension Yojana, you have to cover other type of retirement schemes also, for example public provident fund, right? These type of schemes you have to prepare, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड उसके अलावा आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द एन्युटी प्लान्स दैट आर आल्सो देयर, दैट व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी प्लान्स, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कवर. एंड ये जो बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है, ये कहीं ना कहीं आप, आई वुड से, जब आप अपना फाइनेंस कवर करोगे, राइट, सो आई वुड से एज अ पार्ट ऑफ the capital market, you are going to cover the some components as a part of that too, right? For example, if you are going to cover the bonds, if you are going to cover the equity, they are also a type of investments, right? तो basic of investment में आपका कुछ component finance के topics में भी cover हो जाएगा. But the point is that ये जो schemes हैं, इन schemes पे आपकी अच्छी grip होनी चाहिए, because trust me, जो question पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मुश्किल नहीं होते, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और इसका जो लेवल है क्वेश्चन का, अगर आप एनालाइज करेंगे, इट इज इक्वल टू PFRDA ग्रेड ए ओनली, राइट? सो जिन लोगों ने पेंशन ऑलरेडी पढ़ा है, फॉर एग्जांपल PFRDA ग्रेड ए एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक कंपोनेंट हो सकता है जहां पर स्कोर कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द PYQs, you can see in 2024 from NPS 5 questions were asked, then from APY 2, and from other type of retirement schemes too, right? So 5 plus 2 plus 2, so 9 questions had been asked as a part of, I would say, this pension sector in 2024, and 3 questions were asked in 2023. और अगर आप क्वेश्चन देखो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे PFRD में पूछे गए हैं इस साल, ठीक है, उसी लेवल के ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहते हैं. तो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली पेंशन अवेलेबल अंडर APY, राइट? हमें पता है इट इज 5000, राइट? अंडर द NPS, व्हाट इज द मैक्सिमम एज अप टू विच एन इंडिविजुअल कैन डेफर द एग्जिस्ट ऑन विड्रॉल, राइट? वी नो दैट इट इज 75, राइट? व्हाट इज द मिनिमम monthly pension under UPS if an individual has completed at least 10 years of service
सर्विस, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्रॉल अलॉटेड ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इसमें एक यूपीएस भी आप ऐड कर लो, वो मैं लिस्ट में लिखना भूल गया, बट यूपीएस भी आपको कवर करनी होगी. एक रीसेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट यू मस्ट कवर, राइट. तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. बट आई वुड से कि सिलेबस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो, बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया है. क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, इजीली डुएबल है. थोड़े से आपके बेसिक्स कवर हो गए कि यार इंश्योरेंस कैसे काम, सॉरी पेंशन सेक्टर कैसे काम करता है, व्हाट इज एक्टिव चॉइस, व्हाट इज पैसिव चॉइस, हाउ डू द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वर्क एज अ पार्ट ऑफ पेंशन सेक्टर. थोड़े से आपके बेसिक्स कवर हो गए तो आपको एनपीएस अगर समझ में आ गई तो एपीवाई और बाकी स्कीम्स यूपीएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो स्कीम एनपीएस से छोटी है एंड आई वुड से easily understandable है, right? So you have to focus upon that. पहले basics पे काम करो, then you will be able to cover this pension sector also. I hope it is clear to you. Now the next is basically the GIFT City, GIFT IFSC and IFSCA, right? This is something that you have to cover. Now इसके लिए आपको क्या करना है? You just have to focus upon the website. You have to go to this website ifsca.gov.in and there is another website which is giftgujarat.in, राइट. तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और इस वेबसाइट पे भी आप देखोगे, अगर आप अबाउट अस सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको गिफ्ट सिटी से रिलेटेड यू कैन रीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग गिफ्ट सिटी, रिगार्डिंग गिफ्ट आईएफएससी, राइट. यू कैन कवर ऑल दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से if you could see over here the circulars are also mentioned. So my suggestion is that कि पिछले एक साल के सर्कुलर को थोड़ा स्कैन कर लेना. सारे सर्कुलर्स ऑफ कोर्स नहीं पढ़ने हैं, बट वही सर्कुलर जो आपके एग्जाम से थोड़ा ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है. कोई ऐसा नहीं कि आप कोई भी रैंडम सर्कुलर उठा के पढ़ने लग जाओ. जो आपको पीवाईक्यू एनालाइज करनी है एंड एग्जाम के डिमांड के साथ कोई न्यूज या फिर कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो ओवरलैप हो रहा है, आपको वो भी पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गए हैं, राइट, एज अ पार्ट ऑफ पीवाईक्यूज. सो यू कैन सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं. दैट विच इंस्टीट्यूशन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड विद इन आईएफएससीए, राइट. देन यूनिट्स ऑपरेटिंग इन आईएफएससी आर ग्रांटेड a dash percentage income tax exemption for dash consecutive years for the 15-year term, right? So this question has been asked from Gift City and Gift IFSCA. तो ये सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करोगे, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट, एंड बाय एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू एंड दिस इज द सोर्स दैट यू कैन रेफर as far as this I would say Gift City and Gift IFSC area is concerned. And the same rule applies to the as a part of Global Financial Center also. इसको भी आपको गूगल ही करना पड़ेगा. अगर आपको एक बुक चाहते हैं कि यार बुक मिल जाए, तो बुक नहीं है ऐसी कोई. अगर आपको वेटेज जाना है तो वेटेज इस कंपोनेंट का बहुत ज्यादा हाई नहीं है. ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर में से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था एंड 2024 में तो क्वेश्चन आया ही नहीं था. और आप क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एज पर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स विच लिस्टेड फाइनेंशियल सेंटर does not feature among the top financial center, right? So आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर पे फोकस करो, कि अगर कोई भी अपडेट आई है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर से रिलेटेड, चाहे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी हो, कोई पॉलिसी लाई हो, या कोई इंडेक्स लाया हो, कोई इंडेक्स या पॉलिसी, कोई प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसमें कोई अपडेट लाई हो, कोई अमेंडमेंट लाई हो, सो यू विल हैव टू सी दैट, राइट. तो इसके लिए आपको गूगल का पूरा यूज करना पड़ेगा इन एरियाज को लेकर. और अगर आपने सही एफर्ट्स लगा लिए तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एज मिल सकता है, बिकॉज वी नो दैट फेज 2 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट. फेज 2 के ही बेसिस पे आपके मेरिट लिस्ट में मार्क्स जुड़ेंगे. तो फेज 2 से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. फेज 1 में फिर आई वुड से थोड़ा प्री डिसाइडेड कट ऑफ है, बट फेज 2 में ऐसा कुछ नहीं है. आपको आई वुड से मैक्सिमम कट ऑफ लेकर आना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, सो दैट यू आर एबल टू रीच द इंटरव्यू स्टेज, राइट. तो हर डायरेक्शन में आपको एफर्ट डाल लिया. और स्पेशली ये जो मिसलेनियस कंपोनेंट है जो थोड़े अलग लग रहे हैं आपको, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, राइट, दिस बुलियन मार्केट, तो इन एरियाज को अच्छे से टारगेट करो. बिकॉज जो थोड़े नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो गए या फिर जो थोड़े लेजी एस्पिरेंट्स है, वो यहाँ पर थोड़ा इग्नोर करके आएंगे, ठीक है. मिनिमम एफर्ट डालेंगे, बट अगर आप यहाँ पर पूरा मैक्सिमम एफर्ट डाल देते हो, पूरी अच्छी एनर्जी डाल देते हो, तो ये जो एरियाज है ये आपको बहुत अच्छा एज दे सकते हैं, राइट. और इनका आई वुड से वेटेज भी अच्छा खासा है एग्जाम में. सो देयर इज नो रीजन दैट यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज. आपको जो भी हेल्प चाहिए फ्रॉम एड्यूटैब, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट. वी आर डिस्कसिंग पीवाईक्यूज ऑल्सो. We are decoding the syllabus also. We are telling you the entire approach that what you have to do if you are doing self-study. But let us say if self-study is not working for you, right? If you think that the resources are very much scattered, then of course we also provide different type of, I would say, courses that of course you can join and that can help you as a part of your preparation, right. अगर self study नहीं काम कर रही तो courses भी है. For example, if you go to a website, so over here we are providing two type of courses. The first is this is the combo course for PFRDA and IFSCA. तो PFRDA phase 1 तो अब हो चुका है, तो अगर आपने PFRDA के नहीं अप्लाई किया था तो कॉम्बो कोर्स लेने की कोई सेंस बनती नहीं है, ठीक है. तो अब
सिंगल कोर्सेज को अगर हम देखें तो ये है सिंगल कोर्सेज, सो यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज द प्राइस, दिस इज द कूपन कोड दैट यू हैव टू अवेल थ्रू विच यू कैन गेट दिस फाइनल प्राइस, एंड दीज आर द टू टाइप ऑफ कोर्सेज, द फर्स्ट इज गोल्ड एंड द सेकंड इज सिल्वर। तो गोल्ड कोर्स में अगर हम देखें तो you can see that easily. We provide concept classes, concept notes, mock test, and live revision classes for both phase 1 as well as phase 2, right? And if you talk about this course, which is silver course, this is for phase 2 exclusively. You will find content for concept classes, concept note, mock test, and live revision classes with respect to phase 2, right? तो अगर आपको लगता है phase 1 में confident हो, आपने वो सारा अच्छे से कर लिया है, तो phase 2 के लिए आप इसके साथ जा सकते हो. You can rely upon this course, and that will help you to cover all these miscellaneous areas, whatever areas are there that make you uncomfortable. You can take the help of that. Apart from that, I would say, if you want to see that whether the course style, the way the course has been arranged and the course has been delivered, whether it suits your preparation style or not, right? So in order to check it out, we have this 15 days starter pack also free of cost, जहाँ पर आपको concept classes, concept notes का limited version मिलेगा, and that will give you a good idea that how this entire course looks like, right? And this is प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट, ₹0 है. सो आप इसको चेक करके फिर उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हो, राइट? सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू. फॉर रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट आवर वेबसाइट, एंड फॉर अदर क्वेश्चंस you can write it in the comment box also. I will read each and every comment, and do not hesitate to ask your queries, right? So thank you so much and all the best.